ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੌਲੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ। है कि no doctor wants to take a risk। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਪੂਰਾ ਕੁੱਬਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। गारंटी तो नॉर्मल डिलीवरी की नहीं हम देते, तो स्पाइनल की हम कैसे दे देंगे? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਅ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਘਰੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? प्रेगनेंसी हवा नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਲਪਾ ਗਰਗ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਂਝਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਅਲਪਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਧਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਪਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਾ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਇਅਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਭੇਜਾਂ ਆਪਣੇ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੌਲੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? वैसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी हिंदी में। हिंदी कंफर्टेबल है? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, हाँ ਤੁਸੀਂ हाँ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ठीक। ਹਾਂਜੀ। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से सिजेरियन रेट्स या ऑपरेशन के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम अगर समझना चाहें तो दो पार्ट्स में, कुछ रीजंस पेशेंट्स के हैं, कुछ रीजंस डॉक्टर के हैं। ठीक है। तो पहला अगर हम पेशेंट के ऊपर जाए, क्या कारण है कि इतना ज्यादा सिजेरियन सेक्शन हो रहा है? नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेसिकली हमारी पेल्विक बोन या लोअर बॉडी एक्टिव चाहिए, जिसकी वजह से वो हो। सर्विक्स खुलता है बाय द 9 मंथ्स। अपने आप बॉडी इज सो इंटेलिजेंट कि उसको पता रहता है कि 9 मंथ्स हो गए एंड सर्विक्स स्टार्ट्स टू ओपन। बट अब क्या हो रहा है आज की डेट में, देयर इज नो एक्सरसाइज नहीं है, जिसकी वजह से पेल्विस ही ओपन नहीं हो पा रहा है, सर्विक्स ही ओपन नहीं हो पा रहा है। तो बाय एंड, पहले आपने सुना होगा 9वां महीना लगते ही दर्दें लग गई। हाँ। अब दर्दें ही नहीं लगती। हाँ। सो बाय 9वां महीना, एक्चुअली इट इज 40 वीक्स, 40 वीक्स तक दर्दें ही नहीं लगती। हमको ऑगमेंट करना पड़ता है या दर्दें लगानी पड़ती हैं या इंड्यूस कई बार करना पड़ता है।
तब जाके दर्दें लगती हैं। अब आर्टिफिशियल चीज तो आर्टिफिशियल चीज है, हम्म, उसके आगे साइड इफेक्ट्स हैं। जब हम आर्टिफिशियली दर्दें लगाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी वो साथ में ही आते हैं। आर्टिफिशियल किमें लाते आर्टिफिशियल जौन से हमारे हॉर्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, हम बाहर से देते हैं। सिंथेटिक हार्मोन। हाँ, सिंथेटिक हॉर्मोन्स जब हम वो बाहर से देते हैं, तो अब बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, उसे पता है ये बाहर की चीज है, तो कितना देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि यू कैन कंटिन्यू। ओके, वो कितना देना है उसके अकॉर्डिंग सारी दर्दें लगती हैं। अब वो थोड़ी सी भी ज्यादा कम हो जाए तो यूट्रस जिसने स्पाज्मोटिक एक्शन से बेबी को बाहर करना है, अब वो स्पाज्मोटिक एक्शन से नहीं बेबी आता, वो बहुत ज्यादा दर्दें लग जाती है। पहला साइड इफेक्ट मेकोनियम मतलब कि स्टिंग। पहली चीज ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਮਸਲਸ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ज्यादा लगन का डर ज्यादा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ Yes. ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ Yes. ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ हाँ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਛੱਡੂਗਾ ਉਹ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡੂਗਾ yes. ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜੀ Exactly, ਠੀਕ yes. ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हाँ, बच्चे के धड़कन के ऊपर इफेक्ट आता है। बच्चा इतनी सॉफ्ट सी चीज है, दैट इज वाई सबसे ज्यादा हम जब साइन लेते हैं ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कि ਹਾਂਜੀ हम दर्दे लगा रहे हैं, हो गया ठीक है, तो क्या लेते हैं, सबसे पहला एक लाइन लिखी होती है बच्चे का मुकोनियम, या फर्स्ट जो बच्चा स्टूल पास करता है अंदर हो सकता है। ਅੱਛਾ हाँ, तो क्योंकि वो आर्टिफिशियली है, दर्दे लगाने के बाद भी दर्दे नहीं लगती, हमको सिजेरियन लेके जाना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स ऑप्ट ही नहीं करते हैं कि हमें इंड्यूस करो, सीधा ही हमें सिजेरियन ले जाओ। क्यों? आजकल बॉडीज इतनी कमजोर है, गर्ल्स दे डोंट वांट टू एक्चुअली दर्द सहना ही नहीं है, इससे अच्छा बाईपास करो दर्द वाला फेज Yeah. और सीधा हम सिजेरियन जाए। थर्ड चीज क्या है, पेशेंस रेट नहीं है। हमें पता है दर्द लगाएंगे 12 घंटे से 18 घंटे लगेंगे डिलीवरी होने हाँ में, जी हम तभी सिजेरियन के लिए जा सकते हैं। तो ये हाँ। पेशेंट की जो ईज है उसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। और क्या चांसेस हो सकते हैं कि हमारे को ये लगता है कि दर्द ही नहीं होगा, बेहोश हो जाएंगे, ठीक है बहुत पेशेंट्स को लगता है। तो ठीक है, हम फैमिली सारी वेट कर रही है, इतने पेशेंट्स मुझे आके कहते हैं मैडम अगर दर्दें नहीं लग रही ना, जबरदस्ती ना करो, सिजेरियन कर दो, बिकॉज थ्रेशोल्ड लेवल उतना ही हो गया। हाँ जी ठीक है, और लास्ट है हमारी सिलेक्टेड डेट। ठीक है तो अगर हम चाह रहे हैं 25 दिसंबर को हो, क्रिसमस वाला दिन हो, तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे आसपास हो, तो ठीक है। दैट इज अ बिग थिंग। एंड जॉब्स, कईयों के हस्बैंड्स आर्मी में है, अब जैसे हम इंडिया में हैं, हाँ जी तो उनके हस्बैंड्स को उतनी छुट्टी मिल रही है, हाँ जी एंड उनको पता है कि उनका सी सेक्शन होगा, तो व्हाई नॉट प्लान द बेबी उसी डेट में जब हस्बैंड आ रहे हैं। चाहते हैं यस, तो ये सब प्लान्ड हो जाता है, इस सबसे बड़ी बात ये है। तो हमारी ईज और हमारा जो बिजी स्केड्यूल्स है उसको देख के पीपल प्रेफर, चलो ठीक है सीएस है, आके भी तो रेस्ट करना ही है। अब आता है डॉक्टर के ऊपर। पहली चीज, पेशेंट्स, एवरीबडी इज हैप्पी जब सब तक सारे केस ठीक है। हाँ जी इतना सा केस खराब हुआ तो तूफान है। बिल्कुल तो आज की डेट में नो डॉक्टर वांट्स टू टेक अ रिस्क। अगर थोड़ा सा भी हमें लगता है कि यहाँ पे रिस्क है, तो वी से कि भाई सीएस करा लो, नो डॉक्टर वांट्स टू टेक। पहले दाइयां क्या थी, नोबडी विल आस्क। हाँ जी आज भी ले लो, आज अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई एक बेबी की डेथ होती है या मदर के ऊपर आती है, शोर नहीं मचता, पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स कांट अफोर्ड। बिल्कुल सो हमारा क्या होता है यार, थोड़ा सा है। अब सिंपल एक एग्जाम्पल, कॉर्ड अराउंड द नेक, बच्चे की नालू गले में होती है। 80% पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सिजेरियन क्यों हुआ, पहला बच्चा सिजेरियन इसलिए हुआ है क्योंकि नालू थी, डॉक्टर ने कर दिया। इज दैट एन इंडिकेशन? नो। बट हम फिर भी सिजेरियन क्यों प्रेफर करते हैं उस केस में? अगर बाई चांस टाइट हो, जब बेबी आउट होता है तो बेबी को थोड़ी देर के लिए ब्रेडी मतलब बेबी की सांस रुक जाती है। सो नो डॉक्टर वांट्स टू टेक अ रिस्क। सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है। नेक्स्ट चीज क्या आती है, बहुत कम डॉक्टर के लिए है, बहुत पेशेंट्स ये सोचते हैं कि शायद ये मनी मेकिंग चीज है, बट मैं सोचता हूँ बहुत, हाँ ये बहुत चीज है, पर मनी मेकिंग से पहले डॉक्टर की ईज आ जाती है। हाँ जी
बिकॉज पेशेंट्स इतना कोऑपरेटिव नहीं होता, उससे पहले डॉक्टर को लगता है इतना टाइम हम करके फ्री हो जाएंगे, स्ट्रेस नहीं है कि अभी धड़कन गई, रेडी हुआ, बेसिकली ईज फैक्टर की वजह से शुरू हुआ था डॉक्टर के लिए। ठीक है। सो मेरे अगे ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਮ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਮ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂसेस है कि दोबारा भी सिजेरियन ही करते हैं डॉक्टर। ठीक है। अब अगर इसका रीजन पूछो तो वो यही है कि नो डॉक्टर वांट्स टू टेक अ रिस्क। एक बच्चेदानी है, उसमें कट लगा है और नेक्स्ट बच्चा हम चाहते हैं नॉर्मल हो। बच्चेदानी में स्पाज्मोटिक होता है, ऐसे ऐसे करके हाँ बच्चा जी, बाहर करना है। हाँ जी, जब वो ऐसे ऐसे करके बच्चा बाहर निकलेगा, जो पहला जख्म है उसको हम छेड़ेंगे तो क्या होगा? ठीक ब्लीड। है, बिल्कुल। तो फट वहां से सकती है, ब्लीड फट सकती रप्चर का चांस है। नो डॉक्टर वांट्स, अगेन चांसेस बहुत कम है, बट डॉक्टर क्या पेशेंट ही रिस्क नहीं लेगा। माय है। सिस्टर शी डिलीवर्ड सम 3 years बैक इन कनाडा, हिंदी, ठीक है। हाँ, उसने कनाडा में डिलीवर किया। हाँ जी, अब उसको डॉक्टर ने एक ऑप्शन दी, नॉर्मल जाना है। हाँ, अब मेरे को सब पता है, तो मैं शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया और पूछा, तो मैंने कहा नो, गो फॉर सिजेरियन सेक्शन, हम ही रिस्क नहीं लेंगे तो डॉक्टर तो कभी भी नहीं लेगा। यस, अगर 5 से 8 साल हो जाएं और दर्दें खुद लगे, रीजन भी जबरदस्ती की ऊपर की दर्दें नहीं लगाएं, वो नेचुरल दर्दें बहुत सॉफ्ट होती हैं, ओके, वो लग जाती उसको तो हम नॉर्मल उसका करवा देते। ये सबसे बड़ा कारण है कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होता है, रिकवरी पीरियड थोड़ा ज्यादा है। एक लेयर में नहीं हमारा पेट कटता, 3 लेयर में कटता है, 4 लेयर में कटता है, हाँ जी, तो उसका रिकवरी पीरियड ज्यादा है, वो बड़ा है और एब्डोमेन में है। बच्चा न्यूली जो मॉम होती है उसको बच्चा गोद में उठा के बैठना है, हाँ जी, तो हीलिंग थोड़ा स्लो होता है, तो रेस्ट चाहिए। ऊपर से औरत को एक स्ट्रेस होता है, मैं मोटी होगी, उसकी वजह से वो और ज्यादा स्ट्रेस रहती है, बच्चे को ढंग से उठा नहीं पाती है। बेसिक ये ज्यादा आता है सिजेरियन के बाद कि साइड इफेक्ट एज सच कोई नहीं है, बस ये है कि हीलिंग है और नेक्स्ट जो सिजेरियन सेक्शन है वो भी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद बहुत जो लोग जैसे वो इंजेक्शन से डरते हैं जो सिजेरियन के वक्त लगता है, हाँ जी, तो उसके ऊपर ज्यादा लोग मानते हैं कि उससे पीठ दर्द होता है। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हम सिजेरियन नहीं जाना चाहते। ठीक है। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ हम्म, ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਪੂਰਾ ਕੁੱਬਾ हम्म, ਕਰਕੇ, हम्म, ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਾਈਨਲ ਫਲੂਇਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਂਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਐਕਟਿਵ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਹਰ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ? तो पहले आता है स्पाइनल जो आपने एनेस्थीसिया बोला, हाँ जी, तो उसका क्वेश्चन था कि लगवाना चाहिए कि नहीं। ਨਹੀਂ हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਖਲੋ ਸਕਦੀ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਕਾ, ਸਿਆਪਾ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਟੀਕਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। देखो अब दो चीजें हैं। ਐਂਡ ਇੱਕ Correct. ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ हाँ, ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ?
ਓਕੇ ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾਰਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬਚਦਾ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਾ ਦੂਜਾ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ Local ਪਾਣਾ ਹੈ anesthesia। ਉੱਥੇ ਨਾਟ ਲੋਕਲ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ। ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪਾਈਨਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਜੋ ਨੇਵਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਹਨਾ ਸੁਣ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੂੰ ਬਟ ਕੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਪਾਈਨਲ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ नेक्स्ट चीज साइड इफेक्ट किस चीज से नहीं है नॉर्मल दे भी है मेरे को हर कोई बोलता है एक चीज कि मैडम गारंटी है आपके ट्रीटमेंट की मैं कहती हूँ गारंटी तो तब भी नहीं है जब बच्चा मुझे सिर दिख रहा है ਹਾਂਜੀ ठीक है बच्चा बाहर आ रहा है कि बच्चा निकलेगा कि नहीं ਹਾਂਜੀ गारंटी तो नॉर्मल डिलीवरी की नहीं हम देते तो स्पाइनल की हम कैसे दे देंगे हम्म, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है सिर्फ इसमें तरीका है अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया तभी हम कहते हैं डॉक्टर अच्छा लो तरीके से जिसको एक्सपीरियंस है लगाया जाए तो वो प्रिसाइजली हर किसी को स्पाइनल हेडेक नहीं होता हाँ जी मोस्टली नहीं होता है ना हम्म, अब नेक्स्ट चीज आती है पीठ दर्द की जो आपने बोली हाँ जी मैं ये नहीं कहती नहीं होता हम्म, पर मैं ये भी नहीं कहूंगी होता ही होता है हम्म, वन थिंग हल्का सा है कोई नर्व हल्की सी इंजरी हो थोड़ा रहता है बट ज्यादा बिकॉज विमेन के बाद क्या होता है ये आपको कभी भी वो औरत नहीं बोलेगी जिसने कोई और अपेंडिसेक्टमी सपोज करो उसमें भी वो कभी नहीं बोलेगी जब से मेरा ऑपरेट हुआ मेरा पीठ दर्द हो रही है हमेशा डिलीवरी के बाद ही हम क्यों बोलते हैं हम्म, क्योंकि हमारे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हाँ जी सडनली एक बेबी हमारी लाइफ में आ गया इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है इतने हिस्से में हमारा पेट कट गया पीछे हमें इंजेक्शन लग गया हम्म, सारी रात औरत जागती है बच्चे को दूध पिलाना है फिर जैसे ही खाने करेगी बच्चे ने स्टूल पास कर दिया उसको साफ करो ना नींद का ना सोने का ना पोस्चर का बिल्कुल कभी दूध ऐसे करके पिला रही है कभी ऐसे Stress. दैट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ बैक ठीक है अब इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन था जिसका नॉर्मल हुआ है उसको भी ये लगा दिया हाँ जी उसने पक्का पेनलेस डिलीवरी बोला होगा। ठीक है मीन्स की अब खुद ऑप्शन हाँ खुद ऑप्शन दिया होगा कि आई वांट नॉर्मल डिलीवरी बट इट शुड बी पेनलेस ठीक तो पेनलेस डिलीवरी के लिए भी जो हम पेनलेस करवाते हैं दैट इज इन दी बैक वो हमारे पीछे स्पाइन में ही लगता है इंजेक्शन ठीक है दैट इज ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹਮ। ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅ ਬੇਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ 90% ਚਾਂਸਸ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਰ देयर ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ बिफोर steps प्लानिंग ਹੋਣ? आर यू आस्किंग ਹਾਂਜੀ ਬਿਫੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ 9 ਮੰਥ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹਨਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਅ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ पहला चीज तो ये कि प्रेगनेंसी हवा नहीं है ਹਾਂਜੀ इट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी हम्म। जैसे हम सांस ले रहे हैं हम्म। सांस छोड़ रहे हैं जैसे हम हमारा दिल धड़क रहा है ना डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है उसी तरह प्रेगनेंसी फिजियोलॉजी का पार्ट है ठीक है हाँ जी ठीक है तो पहले तो लोग जब प्रेग्नेंट होते ना हाय प्रेग्नेंट हो गए तू रेस्ट कर तू बैठ जा तू कहीं कुछ ना हो जाए इसको बिल्कुल नॉर्मल पार्ट मानो ठीक है देन फिर हम क्यों बोलते हैं ध्यान रखो बिकॉज नाउ यू आर टू
मेरे को पेशेंट अब आके हमेशा बोलता है, मैम मैंने ना वो बस ट्रैवल करना है, मैं कर लूं? मैं कहती हूँ करो, बट जस्ट लुक एट द रोड्स। रोड्स अच्छी हो, बिकॉज जब पुश लगता है इट विल हर्ट यू। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब वही खून है 10 ग्राम, उतना ही कैल्शियम है, उतना ही विटामिन है, उतना ही मिनरल्स है आपकी बॉडी में, पर यू आर टू, योर बॉडी हैज टू फीड योर बेबी। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो बेबी है ना, इट एक्ट्स लाइक अ पैरासाइट। आपसे हर चीज ले लेगा, वो निचोड़ लेता है माँ की हर चीज। प्रॉब्लम कहाँ होती है? मदर को। दैट इज वाई बैक एक, हेड एक, ब्लेमिशेस, ये वो सब कुछ, स्किन प्रॉब्लम, क्योंकि ऑल द न्यूट्रिशन हैज इज डाइवर्टेड, वो डाइवर्ट हो गया बेबी की तरफ। तो हुआ नहीं है ये। अब आती है कि हम क्या करें। प्रेगनेंसी को नॉर्मल या नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को नॉर्मल समझो, नॉर्मल बिहेव करो, प्रॉपर एक्सरसाइज जो हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल में नहीं रहा। अब आप अपने कितने भी लोगों से पूछ लेना, कौन है जो वॉकिंग को एक नॉर्मल पार्ट मानता है, जैसे वी ईट फूड, वॉकिंग तो एक टास्क हो गया, ठीक है, एंड वी आर गोइंग फॉर अ वॉक मीन्स वाओ वी हैव डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है। नहीं तो अगर हम जा रहे हैं जिम, तो हम पहले 4 फ्रेंड्स को बताएंगे जाके, भाई हम जिम जाके आए हैं। हाँ, लेकिन हमारा जिम पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। लेकिन पहले के अगर हम जस्ट थोड़े मतलब 50 to 60 इयर्स बैक देखें, मैं यूजली अपने पेशेंट्स को एक बात बताती हूँ, माय दादी हैड 6 किड्स, मतलब मेरे पापा और 6 लोग थे। एंड समटाइम मैं अपने डैड को मजाक करती थी कि पापा 6 भाई बहन, आपको और किसी की जरूरत नहीं। बट हाउ कम? ज्यादा दूर नहीं है, माय दादी जस्ट एक्सपायर्ड फ्यू इयर्स बैक। क्या चेंज है अब में और अब में, और सभी नॉर्मल कैसे हो गए उनके, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी, पैरों बार बैठना, नॉर्मल डाइट खाना, वेट लॉस का डंका नहीं बजना कि ये नहीं खाना, ठीक है, जंक नहीं खाना, और एक नॉर्मल लाइफ में टाइम से उठना, टाइम से सोना, एंड नॉर्मल लाइफ में जीना, ठीक है। मोबाइल से चिपके नहीं रहना, जब फ्री हुए तो लेट नहीं जाना, नॉर्मल, है ना। अब मैंने ये घड़ी पहनी है, आई वॉच इट कि आई वर्क कि मैं 10,000 तो करना ही है दिन में, नहीं होते तो मैं यहाँ से उठती हूँ, 2 चक्कर लगा के फिर बैठ जाती हूँ, मतलब इतना भी मेरा वर्कआउट नहीं है। उनको बेट कर लो, किसी को जरूरत नहीं थी इन चीजों की, और तभी शायद डिस्कवर तब नहीं हुए थे ये चीजें। सो आइडियली इफ यू आर प्लानिंग या आपके कोई प्लान कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको? फिजिकली एक्टिव, प्रॉपर न्यूट्रिशन जिसमें हर चीज हो, एंड जब प्रेगनेंसी पास आ रही है या जब डिलीवरी पास आ रही है, सो अपने पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज अगर कुछ एक्स्ट्रा डालना है। जब हम पेल्विस ओपनिंग एक्सरसाइज डालते हैं, जैसे स्क्वाट्स हो गया, या यस, अगर आप देखोगे आज भी जो योगा ले रहे हैं या जो जिम क्लासेस स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट होती हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली पेल्विस पे फोकस करते हैं ड्यूरिंग लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ जब प्रेगनेंसी, जब अब डिलीवरी होने वाली है, तो मेनली फोकस आपकी एक्टिविटी के ऊपर आता है, एंड आपकी मसल डेवलपमेंट के ऊपर, और आपका थ्रेशोल्ड। बिकॉज एंड तो मेन ते काम वही है ना, पुश दा ही है, ठीक है। पुश से पहले भी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो आप क्या पुश कर लोगे? गजब बेइज्जती है। ठीक है, नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं इंक्रीज हो रहे तो बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुलेगा, ठीक है। बच्चे का प्रॉपर प्रेशर डलेगा तब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, प्रॉपर वेट, प्रॉपर सब कुछ, बच्चा नरिश्ड होगा, तब बॉडी को सिग्नल पहुंचेगा हमारे दिमाग को कि भाई बच्चा नरिश्ड है, अब ही इज रेडी टू कम आउट, हुन दर्दा ला दो, है ना। ते हर चीज दी एक वजह होंदी है। हुन एक होर चीज है, जिद्दां बच्चे दा पानी घट गया, बहुत सुनिया है ना, उदों भी अपने आप दर्दां लग जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी ਨੂੰ फिर दिमाग ਨੂੰ सिग्नल मिलता है कि नहीं ਹੁਣ नहीं रह सकता बच्चा, इसलिए 9वें महीने ਚ भी पानी घटना शुरू हो जाता है। हाँ, मैंने तो दस्या बेसिकली सिग्नल ऐसे ही चलता है, हाँ जी, ब्रेन से। हमारा ब्रेन इज कनेक्टेड टू द हॉर्मोन्स, हाँ जी, तो ये सब है। तो न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल मीन डेली बेस पे आप क्या कर रहे हो, एंड एक्टिविटी विद योर एक्सरसाइज, अगर थोड़ा और डालना है। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਰੋਲ? देखो पैरासिटामोल उधर देखे जाए तो रिसर्च हुई है तो सेफ है, ਅੱਛਾ। हाँ, पर अदरवाइज केमिकल्स है। रिसर्च हुई है किन्ने लोग ते हो जाएगी, 2,000 3,000 4,000 5,000, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, फ्यू फ्यू पीपल के ऊपर हुई है।
लेकिन हमें नहीं पता किसको क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने तो खा ली। हाँ जी। ठीक है, दैट इज वाई वी से अवॉइड। हम्म। अब कुछ चीजें जिन पर बिल्कुल रिसर्च नहीं हुई वो देखते ही नहीं हम, क्योंकि ठीक है। रिसर्च नहीं हुई। कोई भी प्रेग्नेंट तो एक ही बार हुए हैं हम, अब सपोज करो, हम क्यों रिस्क लें, अपने बच्चे के साथ ही क्यों रिस्क बिल्कुल। लें। दैट इज द बिग रीजन हम कहते हैं कोई दवाई नहीं खाओ हम्म। जब तक आपकी जरूरत बच्चे से ज्यादा ना हो जाए। सपोज एक पेशेंट है, उसको वो चिकन पॉक्स हो गया, ओके। ठीक है, अब चिकन पॉक्स वायरल है, हम्म। अब हमें पता है एंटीवायरल लेंगे बच्चे पे इफेक्ट आएगा, बिल्कुल। लेकिन अब क्या जरूरी है, माँ हम्म। बच्चे की तभी बच्चे हाँ का जी। है ना कोई मतलब। हाँ तो जी। पहले हमारा एम माँ को बचाना हो जाता है। हाँ जी। तो कुछ ऐसी चीजों में हम बाईपास कर देते हैं। हम्म। फिर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आती हैं, उसमें हम देखते हैं कौन सी ड्रग कैटेगरी है। तो वो ड्रग कैटेगरी जो बेबी के लिए कंप्लीट नो है, जिस पे रिसर्च हुआ है, वो हमारी लास्ट ऑप्शन है या ऑप्शन नहीं है। उससे पहले हम वो देखते हैं जिसके जिसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं मिले हैं या जिस पे कम रिसर्च हुई है, लाइक दैट। ठीक ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜੋ ਰਿਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਛਲੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਟ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਕ ਉਸ ਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੋਊ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਯੋਰ ਲਾਸਟ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਘਰੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਕੁ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੇ ਦਾਈ ਕੋਈ ਫੜਦੇ ਹੀ ਲਾਗੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਬੱਸੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਮਿਲੇ ਜਵਾਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਗੁੱਡ ਮਨੀ ਔਨ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਕॉज ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕटर ने तो सिजेरियन ही करना। ਬਿਲकुल ये 80% चांसेस यही हैं कि वो घर पे क्यों कराते हैं, उनको लगता है डॉक्टर तो जान के कर रहा है, बिल्कुल बट अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर यस करते हैं अपनी ईज, जैसे मैंने बोला उसके लिए, बट पेशेंट की भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। हाँ जी अब अगर बेबी स्टक हो गया या बेबी अड़ ही गया, इसका मतलब क्या है, या तो पेल्विस सफिशिएंट नहीं है। अब पेल्विक बोन्स भी आपने देखी होंगी, ओबेसिटी, हाँ जी कुछ विमेन कमर से पतली होती हैं हाँ जी और थाइज मोटी होती हैं, दैट इज पियर शेप। हाँ जी कुछ है जिसका एब्डोमेन बड़ा रहता हाँ है जी pelvis एंड में पेल्विस छोटा। अब हमें पेल्विक असेसमेंट करके देखना पड़ता है कि बेबी बोन्स कितने हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि बेबी कितना आएगा। इसीलिए बेबी वेट हम कहते हैं बहुत जरूरी है देखना। तो अगर पेल्विक असेसमेंट कर लिया, 5 फुट की पेशेंट है, ठीक है, 3 किलो का बच्चा है, ये 5 फुट के 4-9 की, तो अगर मैं कहती हूँ कि हो सकता है इनका नॉर्मल ट्राई करेंगे, पर नहीं हुआ तो सिजेरियन जाना पड़ेगा। सिजेरियन बना क्यों है, बाय द वे सबसे पहले बना क्यों है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है ना माँ को अपनी लाइफ जानी पड़े ना बेबी को जानी पड़े। ऐसे फिर पेशेंट क्या करते हैं, आते नहीं है। मैं क्यों स्पेसिफिक यही एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने उनको बोला कि भाई हो सकता है कि इसको सिजेरियन करना पड़ सके, पेल्विस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाकी हम जरूर वेट करेंगे, दर्दे खुद लगे तो हम तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बॉडी रेडी हो रही है। दे नेवर टर्न्ड अप। उसके बाद पता चलता है कि भाई उन्होंने तो घर में डिलीवरी कराने की कोशिश की, पर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन आई, फिर वो जल्दी से अमृतसर लेके भागे, ठीक है, शहर लेके भागे। तब इससे क्या पता चलता है, सबसे पहले ये डर निकालो सिजेरियन का। जरूरत है
थोड़ा सा अवेयर हो कि क्यों सिजेरियन कर रहा है डॉक्टर। प्लीज अपने क्वेश्चन मन में रखने की बजाय पूछो डॉक्टर से कि भाई क्या कारण है कि आप सिजेरियन करो, डरो मत अपने डॉक्टर से। दूसरी चीज, पैसा बचाते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। मैं हर पेशेंट को कहती हूँ, सेल लगी हो ना, औरत भागी जाएगी, 2000 का सूट तभी ले आएगी, 5000 का सूट 2000 में बिक रहा था, ले आए। 2 सूट मत खरीदना। अभी पैसा बचाते बचाते एंड में लाख लग जाता है, तब सब कुछ देने को रेडी हो। भाई दाई 8,000 ले रही थी, वो डॉक्टर ने तो 15,000 हॉस्पिटल में मांगा था। 15,000 तो मांगा था। मतलब मैं फेवर नहीं कर रही हूँ किसी भी हॉस्पिटल की, बट अंडरस्टैंड, अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल किसी ने खोला है, ठीक है, और उधर स्टाफ नर्स है, बेडशीट चेंज हो रही है डेली बेस पे आपकी, आपको ओटी में ले जाया जा रहा है जो फ्यूमिगेट होता है, जिसके अलग चार्जेस है, इंस्ट्रूमेंट्स आपको हाइजीनिक यूज हो रहे हैं, सबके चार्जेस लगते हैं। कोई भी अपने पॉकेट से नहीं देता है, इसीलिए चार्जेस ज्यादा है। बट ट्रस्ट मी, इन्फेक्शन भी कम है। बिल्कुल। और मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, मेरी हर नॉर्मल डिलीवरी के बाद मैंने कभी भी आईवी एंटीबायोटिक नहीं दिया है। पेशेंट ओरल लेके जाता है और सुबह डिलीवरी हुई, पेशेंट शाम को घर। वेरी नाइस। ठीक है, बिकॉज नॉर्मल मतलब नॉर्मल, इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है ओ माय गॉड। सो प्लीज बी अवेयर कि क्या हो रहा है। बच्चा अड़ना मीन्स कुछ सही नहीं था, नहीं तो बच्चा तो अपने आप आने के लिए बना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟਸ ਜਸਟ ਮਨੀ ਗੇਮ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 3-4 ਸਵਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦੇ ਜੀ, ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀਕ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਹਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਗ ਜੂ, 1.5 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜੂ, 10 ਲੱਗ ਜੂ, 20 ਲੱਗ ਜੂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ ਕਰੋੜਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਦੇ ਵਿਲ ਚਾਰਜ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਦੈਟ ਸਟਰੋਂਗ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਹੋਗੀ ਕੁੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਧੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੱਸਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। फिर दाज दी टेंशन, फिर बाकी सारी ये सब टेंशन। तो वड्डी गल, झूठा हंसना, मानो चाहे नहीं मानो, जितने भी एजुकेटेड हो जाओ, लड़की हुई, आप स्माइल कर रहे हो, आप डब्बा भी बांट रहे हो, पर अंदर ये काश लड़का हो जाता। और आई कैन, मेरे को तो दिखता है, एंड आई जस्ट से कि यार अभी भी इक्वालिटी बाकी है। एंड ये आई डोंट नो बाहर है कि नहीं है, बाहर शायद नहीं है, इसीलिए वहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन कोई बहुत वो नहीं है, सबको बता दिया जाता है लड़का है कि लड़की है ना। करा भी लिया तब भी ठीक है, उसको थोड़ा सा बाहर अलग ढंग से पता चल जाता है, ठीक है। उसको आप सेक्स रिवील पार्टी कर लेते हो, बस आप उसको मजा के लिए, ठीक है। नहीं, यहाँ पे बता दिया तो ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਬਣਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ हाँ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਂਦੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਟਾਈਪ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇ ਧੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਾਂ ਹਿਸਾਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਿਹਦੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬੀਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕੁੜੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੈਨ ਗਿਵ ਹਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਧਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਉਂ, समझते कि ਤੁਹਾਡੀ एक्सप्लेनेशन ये ਦੱਸ मेरे नहीं साथ, रहा। हम लोग 2 सिस्टर्स थे, हाँ जी। और जब भी कोई आना, अच्छा कितने भाई, लाइक कितने ब्रदर सिस्टर्स हो, तो हमने कहना कि हम 2 सिस्टर्स हैं। भरा नहीं, चल कोई ना। फिर मेरे सिस्टर और मैं एक दूसरे को देखते, हम कहते यार क्या कोई ना। फिर मैं कहती थी यार एक बहन बहुत है, एक भाई और होता तो मैं क्या करती। बट हमने अपने आप को रीजंस देना क्यों शुरू किया, बिकॉज पीपल एक्चुअली पुट इट इन आवर माइंड, साडे दिमाग च पाया गया कि हाय बहुत बड़ी मिसिंग चीज है कुछ, है ना। बट आई मैनू भी नहीं लगता कि कुछ फर्क है। मैं ਹੁਣ ये ਜਿੱਦਾਂ सोच की गल है, आई गेस अनदर 1 जनरेशन उस तक जब तक आएगा तब तक शायद कुछ फर्क हो, फिलहाल तो यही चलने वाला है। एंड
हम दूसरे की सोच नहीं बदल सकते, सिर्फ अपनी। देखो गल पता की है, मैं एक गल पूरा ऐड करता फिर ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਫॉर एग्जांपल ਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਪਾਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੀਮੇਲ ਫੈਟੀਸਾਈਡ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਏਡੀ ਕੁ ਤੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ 18 19 20 21 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੁੜੀ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਬਣਾਈ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ यूट्रस का साइज नॉर्मल इतना जाए, ठीक ठीक है, है, हाँ जी, अराउंड 6-7 सेंटीमीटर्स, और जब तक बच्चा डिलीवर होता है उसका साइज इतना, बिल्कुल, सो इतना सा मस्कुलर ऑर्गन इतना बड़ा होता है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे यूट्रस है तो वो इतना बड़ा हो रहा है। बिल्कुल, उसके बाद जब वो एडजस्ट हो रहा है तो हमारा जो 10 ग्राम खून, जो एक नॉर्मल 5 लीटर खून है, हम्म, वो दो चीजों में डिवाइड हो रहा है। डिवाइड कैसे होगा? बच्चे की सर्कुलेशन अलग है, माँ की अलग है, ठीक है, मतलब हीमोडाइलेशन, उसमें और ज्यादा पानी आएगा। ठीक है, और क्या चीज होएगा? हमारा हार्ट ज्यादा काम करेगा, बस उसको ज्यादा करना है, ठीक है। उसी तरह हमारे सारी बॉडी के मसल्स, इंटेस्टाइन्स, पेट, सब कुछ एडजस्ट कर रहा है, सब हर चीज के लिए। हम्म, तो जैसे ही हमारी डिलीवरी होती है उसके बाद इसको कहते हैं सब इन्वोल्यूशन, उसको वापस वापस अपने साइज पे आना है यूट्रस को। ठीक है, तो कम से कम सब इन्वोल्यूशन के लिए 6 महीने लगते हैं, ठीक है, चाहे नॉर्मल है चाहे सिजेरियन। अनटिल और अनलेस हाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, हाँ, अब सिजेरियन में मैं कहती हूँ ज्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि वो तो कट गया बीच में से टंका यूट्रस। लगा, अब नेचुरली जो चीज होनी थी अब उसको और टाइम लगेगा हील होने में। बिल्कुल, तो मैं कहती हूँ सिजेरियन में आपकी बॉडी अंदर से हील होने को 1 साल लगेगी। हम्म, तो क्या हम 6 महीने या 1 साल बाद दोबारा बच्चा कर लें? व्हाट अबाउट कैल्शियम, मिनरल, न्यूट्रिशन, जो सारा बच्चा ने अच्छी तरह चूस चूस के माँ का ले लिया, ठीक, उसको नहीं रिकवर करना। नेक्स्ट चीज, माँ तो बच्चे को दूध पिला रही है। हम नॉर्मली कहते हैं माँ बच्चे को 1 साल तक दूध पिलाए। 1 साल, अब अगर हम दूध की कॉम्पोजिशन देखें तो क्या आता है? आयरन, कैल्शियम, ठीक है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो वो भी तो माँ से ही बन के जा रहे हैं, माँ के खाने से। तो 1 साल तक तो माँ ने बच्चे का ध्यान रखा, हाँ जी, 1 साल के बाद अपने आप को 1 से 1.5 साल और दे, ठीक है, अपनी बॉडी दोबारा बनाए, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो डिप्लीट हो गए थे वो वापस आए, एंड देन प्लान अ बेबी। आइडली 2-2.5 साल और कम चाहिए से कम। यस, मतलब कि बिकॉज ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬੇਬੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ये ਵਿਚ इज तो नॉट गुड मतलब फॉर मदर चाइल्ड। इसीलिए जो हमारी अब मेरी दादी, दो उनके मैं कह रही हूँ बहुत सारे थे, आई हैव नेवर सीन हर वेरी एक्टिव, मैंने उनको बहुत एक्टिव नहीं देखा। हाय हाय, क्यों है हाय हाय? ठीक है यार, ये हाय हाय से बचने के लिए थोड़ा साइंस भी अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा नेचुरोपैथी अप्लाई कर लेते हैं, क्यों ना मिक्स करके नॉलेज से बेहतर हो। हम तो और डिप्लीट हो रहे हैं और खराब हो रहे हैं जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो आई गेस के 2-2.5 साल इज गुड टाइम हाँ, मतलब इसका अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैं सोच पा रही हूँ कि ठीक है 1 साल पहले दूध तो पिलाओ, बच्चे को ही नहीं दूध पिला रही है आजकल मदर्स, ठीक है। और सबसे बड़ा कारण, ये आपने क्वेश्चन नहीं पूछा पर अब मुझे याद आ डाइट गया। पे चलो हाँ, अच्छा आना है, हाँ ना, चलो मैं बोल देती हूँ। सबसे बड़ा कारण वो दूध क्यों नहीं पिला रही, आपको क्या लगता है? अगर आप देखते हो आजकल मदर्स नहीं पिला रही, ईज, क्या कहते हैं, मैडम बच्चे ने तो दूध ही नहीं पिया मेरा, अब तो सबसे घंटे बाद पींदा है, दूध ही नहीं नहीं मैडम, घर गए तो हम डब्बे वाला दूध दे रहे हैं, क्यों मैडम? दूध ही नहीं आया, बच्चे ने दूध ही नहीं पिया। प्लीज एक बात अंडरस्टैंड करो, मदर का रिफ्लेक्स, ब्रेन, ब्रेस्ट, बेबी, ये एक रिफ्लेक्स है। जितना बेबी सक करेगा Suckling, उतना दूध आएगा, हाँ जी, ये एक ब्रेन को रिएक्शन जाता है। इसीलिए अनफॉर्चुनेट जो मदर्स होती हैं जिनका बेबी किसी कारण से एक्सपायर हो गया, नहीं रहा,
क्या होता है, अपने आप उनको दूध आना कैसे बंद हो जाता है बिल्कुल थोड़े टाइम बाद, बिकॉज ब्रेन को सिग्नल जाता है देयर इज नो बेबी। बिल्कुल। और अगर आप अपना दूध ही नहीं, बेबी को सक ही नहीं करवा रहे हो, तो दूध नहीं आएगा, और वो आपके दिमाग को जाएगा कि नहीं है बेबी। बिल्कुल। दूसरी चीज, मैडम बेबी तो सक ही नहीं कर रहा है, Yes. आपने पहले 5 दिन बेबी को अच्छा निप्पल वाली अच्छी बोतल से दूध पिला दिया, छोटा बेबी भी ईज ढूंढ रहा है, हम हाँ तो जी। फिर बड़े हैं, तो जिसको आपने इतना बड़ा निप्पल बना हुआ दे दिया, आपका ब्रेस्ट का जो निप्पल्स है दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, वो वेल डेवलप्ड नहीं है, बेबी को आसान ही नहीं होता, वो नहीं पी बिल्कुल रहा। बिल्कुल। तो इन दो चीजों पे अगर हम प्रेगनेंसी पे काम करें कि कैसे है, या पेशेंट को हम समझाएं एज अ डॉक्टर, तो बहुत फर्क पड़ता है। मेरे सारे पेशेंट कम से कम 6 महीने तो दूध पिलाते हैं। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਈਟ Okay. ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਹਮ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਅੱਜ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮ। ਜਾਂ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, क्यों नहीं करना चाहिए? आइडली एज सच कहीं पे ये नहीं लिखा कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ईज है पेशेंट का। जो पेशेंट पहले 9 महीने प्रेग्नेंट रही, 9 महीने में से आखिरी 2 बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि सारी बॉडी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आ जाती है, फ्लूइड बहुत बढ़ जाता है, फ्लूइड रिटेशन हो जाता है, कभी कहीं पे दर्द हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी यूरिन में दिक्कत आ रही है। वो पेशेंट का जब बेबी आउट होता है, उसको रिलैक्स तो किया होना, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है नहीं मैं कर रहा प्रेगनेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ जी। ओके। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਆ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ करना चाहिए, ठीक है? देखो एज सच कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ओनली थिंग जो ध्यान रखना है, औरत के पेट के ऊपर भार नहीं आना चाहिए, ओके। है ना। और सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑल की प्लेसमेंट गलत है, मतलब बच्चेदानी के बिल्कुल मुंह पे है, तब अवॉइड करना चाहिए। ओके। कोई भी ट्रिगर किया तो मतलब आप बेसिकली जब भी इंटरकोर्स होता है, तो हम विजाइना में ट्रिगर कर रहे हैं, हाँ जब जी। भी हम ट्रिगर करते हैं तो क्या होता है, लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बॉडी की होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हल्की हल्की पेन हो सकती है जो इतनी जरूरी नहीं है, बट प्रोस्टाग्लैंडिन से सर्विक्स ओपन का डर होता है। ठीक है। 8th मंथ में यूजली, अगर कई डॉक्टर्स मना करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि हम कभी कभी प्रोस्टाग्लैंडिन ट्रिगर कर सकते हैं, और 8 महीने में डिलीवरी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अभी बहुत सारे कारण हैं, इसके मेडिकल कंसेप्ट्स हैं, इसलिए। बट एज सच कॉन्ट्राइंडिकेशन, आई डोंट कॉन्ट्राइंडिकेट जब तक प्लेसेंटा की कोई प्रॉब्लम ना हो, प्री टर्म की कोई मेरे को खतरा ना दिख रहा हो। जिसको प्री टर्म का खतरा है, जैसे कोई पेशेंट है जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री है कि मैम 8वें महीने में ही बच्चा हो गया था, जिसकी प्री मेच्योर बेबी की हिस्ट्री है, उसके नेक्स्ट बेबी की भी हिस्ट्री रह सकती है, ओके। उनको मना करते हैं हम। ठीक है। एज सच कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मिथ है। हाँ, मिथ है, बस पेट का ध्यान रखना होता है, बाहर नहीं आना चाहिए बिकॉज इज अ बेबी। हो हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਆ ਇਦਾਂ ਆ एक ਉਹਦਾ। और चीज, ये पिछले क्वेश्चन से मैं ऐड करूंगी, हाँ जी। बहुत लोग अपनी प्रैक्टिस में 9th मंथ के अराउंड बोलते हैं कि इंटरकोर्स इज वेरी गुड नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ओके। बिकॉज अगेन इसके पीछे साइंस ये बताता है कि लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से सर्विक्स नेचुरली ओपन होती है। ओके नाइस। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ, ਬੱਚਾ ਪੁੱਠਾ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। बच्चे दी पोजीशन साढ़े हाथ है ही नहीं, हाँ जी। बच्चे अपनी मर्जी से घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। अगर बच्चा उल्टा है, हम कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आपका दिमाग क्या कहता है? मतलब कि जे पैर इधर ਨੂੰ ਆ हाँ ਤੇ ਸਿਰ हाँ ਉਧਰ ਨੂੰ, हाँ हाँ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਏਰੀਆ ਜਾਂ समथिंग यस, ये बाहों प्रॉब्लम वगैरह। होता है। तो अगर हमने टांगे निकाल दी, ये फंस गया, तो सिर तो अंदर ही रह गया। बिल्कुल। और जब तक हम निकाल रहे हैं, हमारी आधी नालू बाहर है, आधी अंदर है, सिर अंदर फंस गया, बच्चा वहीं पे चोक हो जाता है। बिल्कुल। एंड सबसे बड़ी शोल्डर, या जब हम जोर से खींचते हैं, यहाँ का इंजरी हो जाती है। ठीक है। और जब इंजरी हो जाती है, बच्चा ब्रेकियल प्लेक्सेस रहते हैं यहाँ पे, आधा हिस्सा ही नहीं काम करता, ओके। है ना। और यार टेढ़ा टेढ़े को कैसे निकालोगे? हाँ, कुछ मैनोवर्स आते हैं, थोड़ा बहुत बच्चा हो तो हम हाथ डाल के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट आइडली अगर बच्चा आडा है तो
प्रेस ही नहीं करेगा, सिर नहीं प्रेस कर रहा या टांगे नहीं प्रेस कर रही, बच्चेदानी नहीं खुलनी। ठीक है। ठीक है, प्रेशर ही नहीं पड़ेगा बच्चेदानी पे, तो आटा कैसे निकाल लेंगे, जो निकालते हैं उन्हीं को पता है हाँ, हाँ। है ना। ये ठीक। और रही बात बिल्कुल पुट्ठा निकालने की, तो उसमें बच्चा फंसने के बहुत 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 चांसेस हैं। नॉर्मल बच्चा ही अगर बहुत बड़ा है तो वो फंसने के हाँ चांसेस जी। रहते हैं, तो ठीक है, तो इसकी कोई पोजीशन नहीं है। बट अगर आप ये पूछते हो कि ऑल की जो पोजीशंस है उसका बच्चे के कोई रोटेशन से फर्क पड़ता है, व्हाट इज ऑल? ऑल प्लेसेंटा, ओके, ठीक। ठीक है, प्लेसेंटा एक बार ग्रो करता है वहीं चिपका रहता है, वो हिलता नहीं रहता। अच्छा, हाँ, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि प्लेसेंटा आज ये है कि प्लेसेंटा सपोज करो ये बच्चेदानी का मुंह है, इसके पास आ गया, हम जो कहते हैं बच्चे की ऑल नीचे है, हाँ जी। जब तक वो ग्रो करेगा, इतनी सी ऑल है, वो ग्रो करेगी, तो वो एक बार ग्रो करके जहां पे आके वो वहीं पे है, ठीक है। देन वो नीचे नहीं आएगी। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਦਾ ਵੌਂਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੰਕ ਰਹੀ वो किसी की भी है, ओके, ठीक है। बेसिकली इट इज जो लमक रही है वो तो अम्बलाइकल कॉर्ड है। ठीक है। अम्बलाइकल कॉर्ड के ऊपर अगर वो पहले आ गई ना बच्चे के सिर से पहले, हाँ जी। तो क्लियर कट है कि वहीं पे सारी सर्कुलेशन बच्चे को रुक जाएगी और बच्चा हमको सेव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, उस कंडीशन में तो जितनी जल्दी हो सके बच्चे को आउट करो, ठीक है। सिजेरियन से, नॉर्मल से नहीं। हम्म। नहीं तो वो तो बच्चे के हेड से ही दब जाएगी, हम्म। समझे। तो वो जो आप हिलने की बात कर रहे थे ना, तो वो ऑल नहीं हिल रही, वो अम्बलाइकल कॉर्ड हिल ओके, रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लेसेंटा नहीं हिल रही। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਖਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਿਣੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ये ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। यस, यही कारण है कि बहुत डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी से तो कोई इंजरी ना हो, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। है ना। नॉर्मल डिलीवरी दौरान बहुत इंजरीज होती हैं, जो डॉक्टर्स प्रिवेंट करने के लिए बोलते हैं तो सिजेरियन कर लो, ठीक है। ताकि कहते हैं ना कि हम बचें जितना बच सके। हम्म। अगर पहले कोई कारण है, इसीलिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बना है, डबल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट, हम्म। ठीक है, इतने स्कैन्स बने हैं, उसमें पता चले, ठीक है, अर्लीस्ट पता चल सके। हाँ जी। क्या ये बढ़ गए हैं फ्रीक्वेंसी, या जैसे आप कह रहे हो बढ़ गया है, अवेयरनेस ज्यादा हो गई है। पहले भी ओके। होता होगा, मेरे हिसाब से अवेयरनेस ज्यादा हो गई है, अब ज्यादा दिखने लग गया है। बिल्कुल। पहले 6 बच्चे थे, अगर एक हो भी तो गुम गया उनमें, हाँ। अब सबका एक एक दो दो ही है, उसमें भी सपोज अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक आ जाता है किसी का, हाँ जी। ऑटिज्म आज बढ़ रहा है, हाँ जी। तो माँ बाप की पूरी लाइफ उसको केयर करते हुए ज्यादा आती है, बिल्कुल। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, दे मेक श्योर, बच्चा तो अपना ही है ना। हम्म। तो आइडली अगर थोड़े बहुत फ्रीक्वेंसी आपके अकॉर्डिंग बढ़ भी रही है, तो वो लाइफस्टाइल और डाइट और जो आर्टिफिशियल मेथड्स है, पोल्यूशन है, टॉक्सिन्स हैं बिल्कुल। एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से ज्यादा है। हम्म। ਸੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ? अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि कितने अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट है? ਨਹੀਂ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ क्यों? ਇੱਥੇ ਨਕ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ। इतने पैसे लगते हैं तो बाहर फ्री होता है, पहली बार। ਹਾਂਜੀ। साइड हम यहीं से शुरू करेंगे, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है? नहीं होता। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता आपको? एक्सरे का साइड इफेक्ट होता है? ਕਿਹਦਾ? एक्सरे, ਐਕਸਰੇ ਰੇਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ। यस, तो ये इसमें भी रेज है, पर ठीक है। इसके अंदर साउंड वेव्स हैं। ठीक है। साउंड वेव्स हमारी बॉडी को हिट करती हैं और वो फिर इलेक्ट्रिकल वेव्स में कैरी होके प्रिंट करके हमें देता है, ठीक है। ठीक है, तो साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई केसेस में बहुत सारे अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है, तो पेशेंट आता है, मैडम इतने अल्ट्रासाउंड, मैं कहती हूँ चाहे हम, अगर आपका केस मुझे बोलता है हर दूसरे दिन, तो मैं दूसरे दिन भी कराऊंगी, बिल्कुल। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अब रही फिर कितने होने चाहिए, हम्म। आइडली मेरे हिसाब से 4 अल्ट्रासाउंड मस्ट है। ठीक है। पहला अल्ट्रासाउंड, जैसे ही आपका यूपीटी पॉजिटिव आया, मतलब आपने 2 लाइनें देखी प्रेगनेंसी टेस्ट में, आपने मिस किए पीरियड्स, आपने क्या ये पीरियड्स नहीं आए, टेस्ट किया, प्रेगनेंसी मुबारक हो, सारे खुश हो गए, ठीक हाँ है। जी। पर वो उस टाइम हम सिर्फ 4-5 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, जब ज्यादातर औरतों को पता चलता है। हाँ जी। पहला अल्ट्रासाउंड अराउंड 7 वीक्स, उसके 2 हफ्ते पे, बहुत डॉक्टर नहीं कराते, ठीक है, बाहर भी आपके शायद नहीं कराते, बहुत डॉक्टर भी नहीं कराते, वो सीधा कहते हैं 3 महीने पे स्कैन कराएंगे। ओके। पर मैं 7 वीक्स कराती हूँ, 2 कारण।
पहली चीज है टू रूल आउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी। आजकल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है और बच्चा कंसीव तो होता है पर ट्यूब्स में जाके प्रेगनेंसी हो जाती है। हाँ जी। ठीक है। और हम तो खुश है प्रेगनेंसी है, 2 लाइनें आई हैं, हम्म, पर सडनली वन फाइन डे पेशेंट इमरजेंसी में आती है, उसकी ट्यूब्स बर्स्ट हो जाती है, बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है और तब जाके पता चलता है जो लाइफ थ्रेटनिंग है मदर के लिए। ठीक है। क्यों ये ज्यादा हो रही है? बिकॉज इन्फेक्शन बहुत हो रही है पेशेंट्स को आजकल। ठीक है। तो बेस्ट चीज है कि अगर हमको 7-8 वीक्स पे नहीं दिख रहा है ना बच्चा बच्चेदानी में, हाँ जी। तो हम अवेयर हो जाते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। दूसरी चीज है फीटल वायबिलिटी। आजकल बहुत देखा गया है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है बट बच्चेदानी का फीटल पोल नहीं बना है या धड़कन ही नहीं बनी है जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो पेशेंट 3 महीने तक ये सोचता रहता था पहले कि हाय हम प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है, और सडनली 13 हफ्ते में जाके जब पता चलता है कुछ नहीं है तो पेशेंट बहुत डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और मेरा एक और कारण है कि मुझे टेस्ट कराने होते हैं। तो अगर मुझे पता चल जाए 7 वीक्स पे कि बच्चे की एक बार उनकी प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, तब मैं टेस्ट सारे देख देती हूँ, सारे बॉडी टेस्ट जो हमें पहले चाहिए होते हैं। तो इससे बहुत इफेक्टिविटी, मतलब पेशेंट की जो पॉकेट से पैसे जाते हैं वो भी हमें पता है कि भाई अब करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। ठीक है, सबसे पहला रीजन ये। नेक्स्ट जो अल्ट्रासाउंड आता है दैट, ये हम पहले स्कैन को फीटल वायबिलिटी स्कैन कहते हैं ठीक है। कि फीटस मतलब आ गया है, धड़क रहा जगह है, पे या ठीक है, जगह पे है, ठीक है। नेक्स्ट स्कैन होता है 12 to 13 वीक स्कैन, जिसको हम एंटी स्कैन कहते हैं, नक्कल ट्रांसलूसेंसी। ये रीढ़ की हड्डी का यूजली स्कैन होता है और इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे को जन्मांतरू प्रॉब्लम तो नहीं, जो हम कहते हैं ना जन्मांतरू बच्चा सीधा है या कुछ है, हाँ जी। वो यहाँ से यूजली पता चल जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ये बहुत हाई टाइम है अगर हमें पता चले, बिकॉज ये एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन के अंदर आता है, तो वी कैन डिसकंटिन्यू द प्रेगनेंसी बिकॉज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हाँ जी। है ना, बच्चे और मदर पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत टारगेटिंग बिल्कुल। सिचुएशन है। बिल्कुल। नेक्स्ट स्कैन आता है जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ी स्कैन, एनॉमली स्कैन या लेवल 2 स्कैन। ये होता है अराउंड 5.5 महीने में, मतलब अराउंड इंडिया में अराउंड 19-20 वीक्स पे होता है। ठीक है। बाहर यूजली 16-17-18 वीक्स पे भी होता है। कब? जब बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे का दिल तो पूरा है, दिल में कोई रसौली छेद तो नहीं है, एक लंग है, ठीक है, 2 किडनीज हैं, ब्रेन पूरा बना है, उंगलियां पूरी हैं, सब हाँ जी। कुछ देखने के लिए। इससे बहुत सारी एनोमलीज डिटेक्ट हो जाती हैं। अब 16-17 वीक्स में भी हो सकता है और पहले, पर इंडिया में क्यों नहीं होता? बिकॉज ये हाई टाइम है जब सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है, और वो इंडिया में फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से इसको लेट कर दिया गया। बिल्कुल। ठीक है, ताकि उसके बाद अबॉर्शन पॉसिबल ना हो सके। ओके। यस, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण है। और कुछ डॉक्टर्स तो आज की डेट में और भी लेट एनोमली स्कैन प्रेफर करते हैं अराउंड 22-24 वीक्स, ताकि बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। बिकॉज फिर अगर फीटिसाइड की बात आती है तो अल्ट्रासाउंड वालों पे बात आती है, तो उनके ऊपर क्वेश्चन ना है ये। ठीक है। लेकिन मैं क्यों पहले करवाती हूँ 19-20 वीक्स पे ऑल दी डॉक्यूमेंटेशन सिग्नेचर्स वगैरह के साथ, ताकि अगर इसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल क्वाड्रुपल मार्कर जो और एनोमली को पहचानता है, ब्लड टेस्ट है, वो करवाना पड़े तो हम करवा सके। ठीक है। लेकिन उसके साथ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चाहिए रहती है यहाँ पे। ठीक। ये कारण है। हाँ जी। ये हो गया तीसरा स्कैन। ठीक है। और चौथा स्कैन हो गया 32 वीक स्कैन, जिसको कहते हैं डॉपलर स्कैन। ठीक है, ये देखता है कि बच्चेदानी में खून का प्रवाह कितना है, प्लेसेंटा में खून का प्रवाह कितना है, खून में, मतलब सिर्फ ये खून के प्रवाह से हम ये देख सकते हैं कि मदर को कोई बीमारी की वजह से बच्चा तो नहीं इफेक्ट हो रहा। ठीक है। हाँ, बीपी बढ़ रहा है तब पता चल सकता है, अगर डायबिटीज है तब उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, अगर आने वाली कोई इंडिकेशन है पहले पता चलता है। दूसरी चीज जो हमें पता चलती है इस टाइम पे, बच्चे का खून वो पानी ठीक है, ठीक है, मतलब बच्चे की ग्रोथ पता चलती है। ये बेसिक 4 स्कैन है जो एवरीबडी मस्ट गो फॉर। इसके अलावा अगर इंडिकेशन है पहले किया, बच्चे का पानी कम है ज्यादा है, तो हम उसमें देख पाते हैं। भेजो जो पेशेंट आई जाते कोई चक्कर नहीं। ओके, अपना वो हो गया। ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਬੈਸਟ ਬਰੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਘੱਟ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਆ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਪਲਾਨ ਆ ਬੇਬੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਓ। फाइनेंशियली
स्ट्रांग नहीं बोलूंगी, फाइनेंशियली ओके। ओके हो जाए, हम्म। ठीक है। चाहिए तो सबको 2 वक्त की रोटी है, हाँ जी। ठीक है। बाकी सारी वांट्स हैं, नीड्स नहीं है। हम्म। सो यू टू मतलब आपको चूज करना है कि आपको क्या ज्यादा चाहिए। हाँ जी। बाद में हम इतने एफिशिएंट नहीं होते फिर बोले बेबी को बेस्ट स्कूल बेस्ट ये, फिर हम वो चीज नहीं है। बी ओके इनफ कि आप जो दे रहे हो वो गुड दे रहे हो, बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है। नेक्स्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि आपको अगर प्लान करना है तो पहली चीज एज अ डॉक्टर मैं जो बोलती हूँ वो ये है, फॉलिक एसिड। ठीक है। ठीक है, फॉलिक एसिड की 5 ग्राम की छोटी सी 5 mg की छोटी सी वो आती है, गोली आती है। वो 3 महीने पहले से लेना शुरू कर दो, बिफोर यू प्लान अ बेबी। वाई। हाँ, बिकॉज फॉलिक एसिड एक ऐसा आप कह लो कि एक ऐसा विटामिन है जो बेबी की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। जो भी जन्मांतरु प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, वो यूजली जो देखा गया वो इसकी डेफिशिएंसी से देखे गए हैं। तो अगर हम 3 महीने पहले से ले रहे हैं तो हमारी बॉडी रेडी हो जाती है एक हेल्दी बेबी प्रोड्यूस करने के लिए मेडिकली। ठीक है। बट क्या ओनली ये चाहिए? एक हेल्दी बेबी के लिए हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म चाहिए। बिल्कुल। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ अपने पेशेंट्स को। कभी डेयरी मिल्क खाई है? हम्म। कैसी लगती है ना? नहीं। क्रीमी नाइस, ओके आप हेल्थ कॉन्शियस हो, अब आपको नहीं पता होगा। तो अगर मैं पेशेंट को पूछती हूँ दे नो इट। हम्म। और कभी एक लोकल दुकान से 1 या 2 रुपए वाली चॉकलेट खाई है? हाँ। उसका टेस्ट देखा है? हम्म। ठीक है, बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। अब वो इतनी सस्ती है फिर भी नहीं बिक रही इतनी जितनी डेयरी मिल्क बिक रही है, एंड ऑन वर्ल्ड वाइड स्केल। बिल्कुल। क्या कारण है? क्वालिटी। मतलब हम लोग इतना पैसा भी देंगे अगर चीज अच्छी है तो बेबी होगा, हेल्दी होगा, ठीक है। लेकिन अब पहले चीज कि क्या चीज अच्छी है, डेयरी मिल्क क्यों इतनी टेस्टी है? हम्म। क्योंकि जो उसका रॉ मटेरियल है वो दैट इज वेरी गुड, हम्म। ठीक है। जो वो कोकोआ यूज करते हैं, फाइनेस्ट ऑफ द शुगर्स यूज करते हैं, फाइनेस्ट ऑफ द फ्लेवर्स यूज करते हैं, ठीक है। और फिर इतनी अच्छी डेयरी मिल्क बनती है। कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है उनके फ्लेवर्स डालने में। चाहे वो हेल्दी है कि नहीं वो अलग बात हाँ। है ना? मुझे पता था अभी ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, बट फ्लेवर के मामले में दे आर यूजिंग द बेस्ट फ्लेवर्स दे कैन, ठीक है। उसी तरह हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी हर छोटे सेल से बनी है और उनमें से एक सेल है औरत में एग सेल, आदमी में है स्पर्म सेल। तो वो अच्छी क्वालिटी का कब होगा? जब उसका रॉ मटेरियल अच्छा होगा। बिल्कुल। और उसका रॉ मटेरियल क्या है? जो भी हमारे अंदर जाता है। और हमारे अंदर क्या जाता है? वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मैंने पार्ट 2 भी बनाना है। ओके। सो ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਓਕੇ। ਪੀਸੀਓਡੀ ਪੀਸੀਓਐਸ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਸੀਓਡੀ ਪੀਸੀਓਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰਵੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ, ਸਮਥਿੰਗ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5% ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਨੈਚੁਰਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਸੀ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਪਿਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। इस चीज बारे पीसीओडी पीसीओएस। एक आपने चीज बहुत अच्छी बोली हम्म। कि हम बीमारियों से मोटे नहीं हुए हैं, मोटे होने की वजह से बीमारी है। अब मोटे होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम मोटे सिर्फ दिख रहे हैं। कई बार फैट हमारी बॉडी में होता है और हम नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल कुछ पतले लोग हैं जिनमें जो बहुत मोटे होते हैं, जिनको मैं कहती हूँ फैट, यस, फैट उनके ऑर्गन्स पे आके चिपकता है। जरूरी नहीं है सारा फैट स्किन पे आके चिपके, ठीक है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, पीसीओडी और पीसीओएस की आपने बात की, क्या आपको पता है ये गायनेक डिसऑर्डर नहीं है? नहीं। हाँ, दिस इज नॉट अ गायनेक डिसऑर्डर। ओके। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो सिंपल हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आता है, फॉर श्योर। ठीक है।
हमारे लाइफस्टाइल की वजह से एक प्रॉब्लम हुई हम्म, और उसने जाके, क्योंकि औरतों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उस पे अफेक्ट कर दिया। ठीक है ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਓਕੇ ठीक ਮੈਨੂੰ है, ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ नहीं नहीं, ओके ओके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अफेक्ट कर हाँ जी दिया और वहां जाके पीसीओडी हम बोलने लग गए। क्यों? क्योंकि औरत को पीरियड्स नहीं आ रहे, बिल्कुल है ना। आइडली अगर पीरियड्स वाला सीन ना हो हम्म तो हमारा मोटिव अपने आप ही मेटाबॉलिज्म को ठीक करना हो जाए। हम्म पर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि औरत को पीरियड्स नहीं आ रहे तो उसको लग रहा है हाय मेरे को पीरियड की प्रॉब्लम है। या भाई तुम्हें पीरियड की प्रॉब्लम नहीं है, ओके तुम्हारे मेटाबॉलिज्म मतलब तुम्हारे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। तुम्हारे पीरियड तो एंड में जाके हाँ इफेक्ट जी हो गए हैं, हाँ जी हाँ जी तो पीरियड तो उसका बाय प्रोडक्ट हो गया। सिम्टम ठीक है, और उसके बाद प्रेगनेंसी ना होना और बाय प्रोडक्ट हो गया। बिल्कुल उसके बाद चाहे आपको हार्ट प्रॉब्लम हो, उसका और बाय प्रोडक्ट हो गया। बिल्कुल तो शुरुआत कहाँ से हुई? मुंह से और सोने से, हमारे बेड से, हमारे लाइफस्टाइल से हुई। वेरी Just a minute. हेलो, रुको रुको, आप बुला रहे। ठीक है, हाँ तो जी ये पीसीओडी है। तो अब आते हैं कि पीसीओडी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? पीसीओएस में इसकी डाइट वगैरह ਦੇ ਨਾਲ सारी चीजें ना हाँ, तो ये बेसिकली हमारा एज का अलग ही समझने का वो है। कभी मतलब इट इज अ बिग टॉपिक, अपने आप में बहुत बिग टॉपिक है कि पीसीओएस कैसे होता है, पीसीओडी कैसे होता है। हम्म ठीक है, बट एक सिंपल सी चीज, मोटा हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम मोटे हो रहे हैं। ठीक है, हम मोटे हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बीमारियां लग रही न्यूट्रिशन डिप्लीट हो रहा है। न्यूट्रिशन डिप्लीट हो रहा है, हमारा दिमाग और हार्मोन्स बोल रहे हैं भूख लगी है, भूख लगी है। क्योंकि जो खा रहे हैं वो सेल के अंदर तो जा नहीं रहा। बिल्कुल फिर हम और खा रहे हैं, ओवर ईटिंग हो रही है, ओवर ईटिंग हो रही है, हम फिर मोटे हो रहे हैं। हम्म वो फिर दिमाग में जा रहा है कुछ खाना है, क्रेविंग शुरू, हम खा रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, खा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। ऊपर से स्ट्रेस शुरू, हम्म कॉर्टिसोल बढ़ गया और भूख लग रही है और खा रहे हैं। हम्म और हम फिर बाद में क्या बोलते हैं, मुझे थायराइड है या इसलिए मैं मोटी हूँ। या और इसके ऊपर मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन करूंगी उन मूवीज से जो जिन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया मोटे होना। हाँ आई डोंट नो, इतनी मूवीज बन रही है मोटी है तो क्या हुआ। आई अंडरस्टैंड, हमको वी डोंट हैव टू मेक फन ऑफ देम हम्म जो मोटे हैं, बिकॉज आपको नहीं पता वो किस स्ट्रेस से जा रहे हैं। बहुत शर्म आती है उन लोगों को, इतनी डिप्रेशन में जाते हैं जब चार लोग उनको मोटा करके बुलाते हैं। हम्म प्लीज इस चीज पे ध्यान दो कि उनका मजाक नहीं उड़ाना। हम्म बट जब हम ऐसी मूवीज देखते हैं ना कि तो क्या हुआ, और वो फिर लड़की क्या करती है, देखा मोटे होना बुरा नहीं है, या और वो इतनी बड़ी प्लेट रखती है पूरा जंक से भरा हुआ और खा रही है। तो हम क्या सिखा रहे हैं, दैट इट इज ओके। बट आप क्यों भूल जा रहे हैं, आइडली क्या कर रहे हैं हम, वो बीमारी और बढ़ा रहे हैं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਾਈ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਇਜ਼ slim because it is smart हम्म, ठीक है एंड व्हेन यू आर फैट ठीक है यू डोंट लुक स्मार्ट हम्म, ठीक है एंड मैं मजाक उड़ाਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੂਵੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਿਆ ਸੀਗਾ हम्म, ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ ਚ हम्म। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਗਿਵ them advice give them good advice give them support but never give them say sympathy Yes, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ sympathy नहीं ਆਪਾਂ ਦੇ don't give sympathy, but yeah there's a way to speak. yeah Because कई बार हम लोग बोलते हैं ना, हम्म, कईयों को हर्ट हो जाती है, and बिल्कुल it really hurts to the end कि वो कहते हैं अब भाड़, because losing weight is not easy at all. हाँ जी तो जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से जाते हैं, हमारा माइंड का एक और सिस्टम है जो हमें पुल बैक करता है। बिल्कुल तो फिर वो लोग कहते हैं भाड़ में जाए पतले होना, मैंने होना ही नहीं, हाँ है ना। तो इट इज, जिसको नॉलेज है दे कैन हेल्प, या जिसको नहीं है दे कैन नॉट। सो आई नो ऑल अबाउट इट, हाँ जी सो आई हेल्प विमेन लाइक यू बिल्कुल डू। हम्म, ठीक है, बट इन अ वेरी सॉफ्ट वे। हाँ जी मैं रूड ही चलदा